Hello students, today we will start the new chapter number 1, relations and functions. We have already done this topic in 11th standard also, so we will study here in some extended form. So let first recall Cartesian product of sets. We have done in 11th standard. Just to recall it, you know that the Cartesian product of two non-empty set A and B is given by A cross B, A multiplied by B, and which is equals to a set of order pair xy, where first element belongs to A and second element belongs to B. So product of two non-empty set A and B is given by A cross B is equals to xy. Xy is the order pair such that x belongs to A, x belongs to first set, and second element y belongs to the second set. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड. सो ए क्रॉस बी इज एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. लेट्स सी वन एग्जांपल. इट इज अ सेट ए 1 2 3 elements and set B elements are 4 5. Now we have to find A cross B, A Cartesian product B. Then you know that we have to make ordered pair taking first element as element of set A and second element from set B. तो first element first set से आएगा 1, then from second it can be 4, then 2 4 3 4. फर्स्ट एलिमेंट हमने ए से चूज किया 1 2 and 3 और सेकंड सेट से चूज किया सेकंड एलिमेंट 4. सिमिलरली नाउ अगेन वी चूज 1 2 3 as first element and second element as 5. So these are the element in A cross B in the form of order pair. 1 4 is ordered pair. First element 1 है, second element 4 है. This is A cross B. Similarly we can find B cross A. B cross A mean we have to choose first element from set B and second element from set A. So first element 4, the second can be 1 2 or 3. So 4 1 4 2 4 3. Similarly we choose now first element as 5, then second element can be 1 2 or 3. So this is A cross B and B cross A, Cartesian product of two sets. Same we have done in 11th standard. We just recall it. Now our next topic, relations. This also you have done in 11th standard. You know that a relation from set A to B is a subset of A cross B. जो relation होता है that is always subset of A cross B. A cross B का subset होता है. और ये subset कैसे आएगा? By describing a relation between first element and second element. जैसे ऊपर A cross B B cross A फाइंड किया, that is without any relation कि हमने order pair बनाना ही है. लेकिन जब यही order pair हम किसी rule के according, किसी relationship के according बनाते हैं तो दैट इज कोल्ड एज रिलेशन, इसीलिए इसको रिलेशन बोलते हैं. एंड देन वी फाइंड द रिलेशन. सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कोल्ड एज डोमेन एंड सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट एज रेंज. ठीक है. सो रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. और ये रिलेशन बनता कैसे है? व्हेन वी अप्लाई सम रूल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स. फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट हम किसी रूल के अंडर सेलेक्ट करते हैं, then it is called as a relation. Same we have done in 11th standard also. Let's see one example on relations. We have to find domain and range of a relation R. Which is given by, if A is set given 1 2 3, the B set is given 4 5. These are two sets given where the relation R is defined from A to B, and relation is given x y such that x divides y. जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट
फर्स्ट एलिमेंट है दैट डिवाइड द सेकंड एलिमेंट, वेयर x belongs to a and y belongs to b, x divides y. सो नाउ वी मेक द ऑर्डर पेयर फॉर रिलेशन आर. तो अब एलिमेंट को हमें ऑर्डर पेयर बनाने अकॉर्डिंग टू दिस रूल. ये रूल आ गया यहाँ पे x डिवाइड्स y. यू कैन सी 1 डिवाइड 4 1,4, then 1 divide 5 1,5, then 2 divide 4 2,4. बाद में 2 5 को डिवाइड नहीं करता. सिमिलरली 3 विल नॉट डिवाइड एनी एलिमेंट. सो आर हैव दीज ऑर्डर पेयर 1,4 1,5 2,4 अकॉर्डिंग टू रूल x डिवाइड्स y. फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट को डिवाइड करते हैं. नाउ डोमेन फर्स्ट एलिमेंट एज डोमेन. फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 और 2 फर्स्ट एलिमेंट है तो उनका सेट होगा डोमेन. सेकेंड एलिमेंट 4,5, then their set is range. Now we can also show this relation by the diagram. So let this is set A which have element 1 2 3 and other set B element 4,5. Now you can see in relation 1 is related to 4, so we join 1 with 4 with the arrow. Similarly 1 is related to 5, 1 arrow 5 and 2 to 4. So these first element 1 and 2 is domain, 4 and 5 and range. 4 और 5 को इमेज बोलते हैं और 1 और 2 को प्री इमेज बोलते हैं. इमेज ऑफ 1 इज़ 4 और 4 की प्री इमेज है वो 1 है. सो दिस इज द रिलेशन. नाउ आवर मेन टॉपिक ऑफ क्लास 12th. यहाँ से क्लास 12th का वर्क स्टार्ट हो रहा है. दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन. फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन. ए रिलेशन इन सेट ए. अब जितने भी रिलेशन पढ़ेंगे दैट इज ओनली इन वन सिंगल सेट. जैसे वहाँ पे 2 थे ए से बी में, यहाँ पे रिलेशन ऑल रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, एक ही सेट में. सो रिलेशन आर इन सेट ए कॉल्ड इज एम्प्टी रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट. अगर एक एलिमेंट ए का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो इसको एम्प्टी सेट कहेंगे. लुक एट दिस एग्जाम्पल. ए इज गिवन 1 2 3, दैट सेकेंड सेट ए इज ऑल्सो 1 2 3 बिकॉज रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए. such that r is x comma y, x plus y is greater than 6. कंडीशन है we have to choose two element x and y such that their sum should be greater than 6. तो यहाँ पे a में कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, उनका सम 6 से ग्रेटर नहीं आ रहा. मैक्सिमम 6 आ रहा है, 3 + 3. सो इट हैव नो एलिमेंट. 5 आ गया, यानी कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है. इट इज एम्प्टी रिलेशन. नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन. A relation in R set is called universal relation if each element is related to every element of A. Each element of A is related to every element of A. हर एलिमेंट बाकी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है. तो R इस कंडीशन में होता है इक्वल टू A क्रॉस A. When relation is equal to A cross A, it is universal relation. Look at this example. A is 1 2, then relation R is given एक्स वाई सच दैट डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस वाई उसकी मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. जो एक्स माइनस वाई का मॉड्यूलस है दैट शुड बी आइदर 0 और ग्रेटर दैन 0. तो 1 1 लेंगे, 1 और 1 का डिफरेंस 0 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन. 1 2 ले सकते हैं, 1 और 2 का डिफरेंस आएगा -1, मॉड्यूलस लोगे तो +1 हो जाएगा विच इज़ ग्रेटर दैन 0. सिमिलरली वी कैन टेक 2 1 एंड 2,2. और ये किसके इक्वल है? ए क्रॉस ए के इक्वल है. आप चेक कर सकते हैं, सारे एलिमेंट आ गए. सो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए. 1 है फर्स्ट एलिमेंट, वो 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है. देन सेकेंड एलिमेंट 2 दैट इज रिलेटेड टू 1 एंड 2, दोनों से रिलेटेड है. सो दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन. थर्ड इज द आइडेंटिटी रिलेशन. रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. अगर कोई सेट ए का हर एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड है, ओनली टू इटसेल्फ ओनली, किसी और से रिलेटेड नहीं, खुद से ही रिलेटेड है, देन इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी रिलेशन. व्हेन ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ और इट इज डिनोटेड बाय आई. सो लेट्स सेट ए इज 1 2 3 एंड इट इज डिफाइंड एक्स कॉमा वाई सच दैट डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस वाई इज 0. एक्स वाई के जो डिफरेंस है मॉड्यूलस दैट इज 0. एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी. सो नाउ यू कैन सी डिफरेंस किस किस का 0 होगा. 1 1, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0. सो वी हैव ओनली 3 एलिमेंट 1, 1,
2, 3, क्योंकि इनका डिफरेंस 0 है। Here you can see each element is related to itself only. 1 केवल 1 से रिलेटेड है, 2 is related to 2 only, and 3 is related to 3 only. Each element is related to itself only. So it is called as identity matrix. किसी और से रिलेटेड नहीं होगा, केवल खुद से होगा। Now reflexive. A relation set to reflexive if a comma a belongs to R, रिलेशन से बिलोंग करता है a comma a, और all a belongs to a. It's mean if each element related to itself, then it is called as reflexive relation. अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, आपको आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव एक जैसे लग सकते हैं, बट देयर इज मेजर डिफरेंस इन आइडेंटिटी रिलेशन। एलिमेंट कैन बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, किसी और से नहीं होता। रिफ्लेक्सिव में खुद से होना जरूरी है, बट इट इज़ आल्सो अलाउड दैट इट कैन बी एसोसिएटेड विद एनी अदर एलिमेंट। ठीक है जी, आइडेंटिटी में केवल खुद से अलाउ है, और रिफ्लेक्सिव में खुद से होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही वो दूसरे एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। लुक एट दिस एग्जांपल, a इज़ 1, 2 एंड रिलेशन इज गिवन x माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एक्स और वाई का जो डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर दैन 0। तो आज क्या आएगा हमारे पास, 1, 1 डिफरेंस 0 हो गया, 1, 2 डिफरेंस 1 आएगा विच इज़ ग्रेटर दैन 0, 2, 1 डिफरेंस 1 आएगा ग्रेटर दैन 0, 2, 2 0 आ गया। नाउ लुक, 1 खुद से रिलेटेड है, 2 भी खुद से रिलेटेड है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ईच एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। बट इसके साथ आप देख सकते हो कि 1 है वो 2 से भी रिलेटेड है, और 2 है वो 1 से भी रिलेटेड है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी में खुद के अलावा किसी और से रिलेटेड नहीं हो सकता, बट इन रिफ्लेक्सिव इट इज़ नेसेसरी दैट ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, बट इट कैन रिलेटेड टू अदर एलिमेंट आल्सो, दूसरे एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन इन आर in set A is called symmetric if AB belongs to R implies that BA belongs to R। यानी A B से रिलेटेड है, उसके बाद अगर हमारे पास B A से रिलेटेड आ जाए तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। आइडेंटिटी और जो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है जी, इफ़ AB belongs to R then implies that BA belongs to R। AB उसका अपोजिट हो गया BA, वो भी अगर R में है तो उसको कहेंगे हम सिमेट्रिक, एंड दैट इज़ फॉर ईच एंड एवरी पेयर, हर पेयर के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 इज आवर सेट ए, x माइनस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो देख लीजिए आर में क्या क्या आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, क्योंकि डिफरेंस है वो उसका मॉड्यूलस है दैट ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। सिमिलरली 2, 1, 2, 2, 2, 3, एंड देन 3, 3, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3 सारे एलिमेंट आ गए, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू अदर एलिमेंट्स। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं। फर्स्ट पे रहते हैं 1, 1 का अपोजिट क्या होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को इंटरचेंज 1, दैट इज लाइक देयर। फिर नेक्स्ट है 1, 2 का अपोजिट क्या होगा, 2, 1, यू कैन सी बोथ आर देयर। फिर 1, 3 है, 1, 3 का अपोजिट 3, 1 इज देयर। फिर 2, 1 का अपोजिट 1, 2 ऑलरेडी देयर। 2, 2 अपोजिट है, 2, 3 का अपोजिट 3, 2 इज देयर। 3, 1 का अपोजिट 1, 3 इज देयर। सो एवरी एलिमेंट, इसके जितने भी ऑर्डर पेयर है सबका अपोजिट है दैट लाई इन द सेट, सो इट इज सिमेट्रिक। जितने भी पेयर दिए हुए हैं रिलेशन में सबका अपोजिट होना जरूरी है, अगर एक का भी नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1, 3 है, अगर उसका अपोजिट 3, 1 नहीं होता तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है। ईच एंड एवरी पेयर हैव इट्स अपोजिट। नेक्स्ट ट्रांजिटिव
रिलेशन आर इन सेट इज कॉल्ड ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। दो रिलेशन है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से। इनमें फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट बी इज इक्वल टू बी, ये सेम होना जरूरी है। इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन इफ़ ए रिलेटेड टू सी देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो ना ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल होगा। अगर ए सी के इक्वल आ जाता है तो इट इज़ ट्रांजिटिव। ए इज रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन इफ वी गेट ए रिलेटेड टू सी it is called as transitive. Let's see this example. A have two element 1 comma 2, x minus y, modulus of x minus y is greater than 0, greater than 0 है modulus। ठीक है, x belongs to a, y belongs to b। तो लेट आर में क्या क्या आ जाएगा, 1 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 1 एंड 2,2। अब आप ऐसे दो पेयर ढूंढिए जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल हो। जैसे ये रहा, फर्स्ट एलिमेंट लो 1,1 और 1,2, इसमें 1 1 सेम आ गया तो क्या आएगा 1,2 जो लाई कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पेयर 1,2 2,1, जो बीच में दो लिखे हैं 1,2 2,2, 2 सेम हो गया तो क्या आएगा 1,1 विच इज लाई देयर। सिमिलरली सो यू जब भी हमारे पास ऐसे पेयर बनते हैं कि ए बी और बी सी दो पेयर बनते हैं जिसमें बी एलिमेंट है वो सेम है और ए सी बिलोंग करता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांजिटिव। अभी और डिटेल में हम एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्विलेंस रिलेशन। रिलेशन आर इन सेट ए सेट टू बी इक्विलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन को इक्विलेंस रिलेशन कहेंगे इफ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि जो है रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम इक्विलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे ए कॉमा बिलोंग्स टू आर हो फॉर ऑल आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक की कंडीशन होगी। थर्ड ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ट्रांजिटिव की। ठीक है, लेट्स सी वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इक्विलेंस रिलेशन एज वेल एज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट ये एग्जांपल दिया कि टी इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। टी है उसमें बहुत सारे ट्रायंगल है और रिलेशन दिया है T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो इस रिलेशन में कौन से ट्रायंगल आएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जहाँ पे T1 है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें शो करना है कि ये इक्विलेंस रिलेशन है। इक्विलेंस रिलेशन के लिए चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, यू नो दैट ईच ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। इट्स मीन T1, T1 बिलोंग्स टू R, यानी हर ट्रायंगल है वो खुद से रिलेटेड है बिकॉज ईच ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। इट्स मीन दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया है। सेकेंड है सिमेट्रिक, सो वी सपोज दैट लेट T1 इज रिलेटेड टू T2। T1 और T2 दो ट्रायंगल है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, हमने ये सपोज करना है। इसका मतलब हुआ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन कि एक ट्राइंगल दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, देन T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। दैट इम्प्लाइज T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल। सो T2, T1 बिलोंग्स टू R। हमने T1, T2 सपोज किया था, हमने प्रूव कर दिया T2, T1 उसका अपोजिट दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू R, सो इट इज सिमेट्रिक। नाउ थर्ड वी हैव टू प्रूव ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें दो पेयर लेने हैं। लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, जहाँ पे T2 दोनों में सेम है। ठीक है जी, ये दो हमने अपनी तरफ से लेने हैं पेयर। T1, T2 मीन हो गया T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है, एंड T2, T3 मीन T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, इट्स मीन T1 इज कॉन्ग्रुएंट T3। ठीक है जी, ट्राइंगल ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के, तो ए और सी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट्स मीन T1, T3 बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन है ट्रांजिटिव की कि A, B
belongs to R, B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R, then it is transitive. So this relation is reflexive, symmetric and transitive, all three, so it is equivalence relation. This is example of equivalence relation. Now let's see some question from exercise 1.1 ताकि आप रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन समझिए. यही चेक करना है हमें. फर्स्ट दिया है रिलेशन R इज गिवन इन द सेट ए. सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक, 1 2 3 13 14. जो रिलेशन डिफाइन किया वो सेट ए में डिफाइन किया गया है. और रिलेशन R दिया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वस टू 0. ये इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई इक्वस टू 0. हमें ऑर्डर पेयर एक्स और वाई इस तरह लेने जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ठीक है जी. और x की वैल्यू है वो 1 से लेके 14 तक हो सकती है. नाउ लेट फाइंड R इन ऑर्डर पेयर. तो यहाँ 3x माइनस वाई है तो y इक्वस टू 3x आ गया. y इक्वस टू 3x. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x. फर्स्ट एलिमेंट x की वैल्यू पुट करेंगे और सेकेंड एलिमेंट y की वैल्यू आएगी. तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 2 3 14. वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड देन वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y. सो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 3. तो 1 इज रिलेटेड टू 3. देन वी पुट 2 तो 2 कॉमा 6 आ जाएगा. 2 इज रिलेटेड टू 6. देन वी पुट 3 3 कॉमा 9. 3 इज रिलेटेड टू 9. 4 पुट करेंगे 4 3 या 12. आगे वैल्यू पुट नहीं कर सकते 4 के बाद, क्यों. अगर हमने आपने 5 पुट किया तो 5 3 या 15 आएगा जो ए में लाइन नहीं करता. बताया था ये रिलेशन है. दीज ऑल रिलेशन आर फ्रॉम ए की सेट के अंदर है ए टू ए. यानी ए में से हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की और जो वाई की वैल्यू आएगी दैट इज आल्सो दैट शुड बी बिलोंग्स टू सेट ए. तो जब 5 पुट करते हैं तो 5 3 या 15 आता है और 15 सेट ए में नहीं है तो इससे आगे वैल्यू हम नहीं लिख सकते. सो ओनली दीज 4 एलिमेंट्स लाई इन दिस रिलेशन आर. अब पहला चेक करना है रिफ्लेक्सिव आएगा नहीं तो नॉट रिफ्लेक्सिव. क्यों नहीं है. यू कैन सी कौन से एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4. नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है. जैसे 1 कॉमा 1 नहीं है यहाँ पे. 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1. 2 कॉमा 2 भी नहीं है. 3 कॉमा 3 नहीं है. कोई भी नहीं है. सो नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. इट्स मीन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. 1 1 से रिलेटेड नहीं है. 2 2 से रिलेटेड नहीं है. सो रिफ्लेक्सिव नहीं है. सिमेट्रिक. इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. आप कोई भी पेयर उठा लीजिए. जैसे 1 कॉमा 3 लिया. 1 कॉमा 3 मीन 1 इज रिलेटेड टू 3. इसका अपोजिट क्या होगा 3 कॉमा 1 विच इज़ नॉट हेयर. ठीक है. 2 कॉमा 6 इसका अपोजिट 6 कॉमा 2 दैट इज आल्सो नॉट देयर. सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर. अगर एक पेयर के लिए भी नहीं है सिमेट्रिक तो सारों के लिए नहीं है. फिर दैन नॉट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव नहीं है. आप 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे देखिए 1 कॉमा 3 3 कॉमा 9 बताया था. सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए. 1 कॉमा 3 3 कॉमा 1 तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 1 कॉमा 9 और 1 कॉमा 9 इसमें लाई नहीं करता. सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव. 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर. 3 कॉमा 9 बिलोंग्स टू आर. देन 1 कॉमा 9 नॉट बिलोंग्स टू आर. सो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है. दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन वेयर वी चेक the type of relationship. Let's see the second part. Second part relation R in given set n of natural number. Natural number का set n है. You know that natural numbers. उसमें define किया है relation R such that R is equals to x comma y such that y equals to x plus 5. y equals to x plus 5 दिया है और कंडीशन दिया x is less than 4. You know that they are infinite natural number but x की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी कि x is less than 4. तो y equals to x plus 5 आ गया और x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 1 2 3 बिकॉज इट इज गिवन लेस देन 4. तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 कॉमा 6. 2 पुट करेंगे 2 कॉमा 7. 3 पुट करेंगे 3 कॉमा 8. सो दीज आर द वैल्यू 1 6 2 7 3 8. ठीक है जी. क्योंकि x इज गिवन लेस देन 4 तो 3 ही वैल्यू है. फर्स्ट नॉट रिफ्लेक्सिव.
आप देखते हैं आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, कोई भी खुद से रिलेटेड नहीं है, 1 1 नहीं है वहाँ पे, 2 नहीं है, 3 नहीं है। जब तक एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होगा, सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज नो एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेकंड, नॉट सिमेट्रिक। आप कोई भी पेयर उठा लीजिए, जैसे 1,6 है, 1,6 का अपोजिट 6,1 इज नॉट देयर, 2,7 का भी नहीं है, 3,8 का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। ठीक है, तो 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव। कोई पेयर बन रहा है ऐसा जिसमें सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, जब पेयर नहीं बनेगा तब भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। पेयर बनता है और कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ट्रांजिटिव होगा। अगर पेयर बनता ही नहीं है, कोई ऐसा पेयर नहीं बना, जैसे 1,6 है, सेकंड एलिमेंट 6 है, तो इसका कोई पेयर बन नहीं रहा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 6 आए, सो देन इट इज आल्सो नॉट ट्रांजिटिव। सो नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज देयर इज नो pair in R such that AB belongs to R and BC belongs to R, implied AC belongs to R। AB BC, B और जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, ऐसा कोई पेयर नहीं बन रहा। पेयर नहीं बन रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो दिस सेकंड पार्ट इज आल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। नाउ फोर्थ, थर्ड यू कैन ट्राई योर सेल्फ। फोर्थ पार्ट, fourth part is relation R in set Z of natural integers। set जो Z होता है set, वो इंटीजर्स का सेट होता है। और R रिलेशन दिया है x, y such that x minus y is a integer। x minus y, x इंटीजर है, y इंटीजर, एंड यू नो दैट द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर का डिफरेंस भी हमेशा क्या होता है, इंटीजर्स होता है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो हम कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं लिखते जैसे पिछले दो एग्जांपल में किया। सो हियर वी टेक जनरल सॉल्यूशन। स्टिल लेट ए बिलोंग्स टू जेड, ए हमने एलिमेंट लिया बिलोंग्स टू जेड, तो ए माइनस ए क्या आएगा, 0, 0 बिलोंग्स टू जेड, 0 इज आल्सो एन इंटीजर। देन ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आप समझ सकते हैं 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, 2 माइनस 2 0, माइनस थ्री 0, 4 माइनस 4 0। इट्स मीन ईच इंटीजर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्योंकि हर इंटीजर का खुद के साथ जो डिफरेंस है वो 0 ही आएगा। सो और 0 होता है इंटीजर, x माइनस वाई इंटीजर, ये कंडीशन है कि जो भी दो इंटीजर लेंगे उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। सो रिफ्लेक्सिव हो गया है। यहाँ हमने ए लिया, पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं ले सकते क्योंकि दे आर इनफाइनाइट इंटीजर। नाउ सिमेट्रिक, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने सपोज किया कि ए बी बिलोंग्स टू आर मीन ए इज रिलेटेड टू बी। ए बी से रिलेटेड मतलब है ए और बी का जो डिफरेंस है दैट इज एन इंटीजर। ए माइनस बी इक्वल्स टू एम, मैंने लिख दिया इंटीजर। अब माइनस कॉमन लेंगे तो इधर बन जाएगा बी माइनस ए और इधर आ जाएगा माइनस एम। देन बी माइनस ए इक्वल्स टू माइनस एम। अगर एम इंटीजर है तो माइनस एम भी क्या होगा, इंटीजर होगा। जैसे 2 इंटीजर उसका माइनस 2 इंटीजर, 4 इंटीजर है तो माइनस 4 भी इंटीजर होता है। तो b माइनस ए इज आल्सो इंटीजर। देन b कोमा ए बिलोंग्स टू आर। a कोमा b बिलोंग्स टू आर हमने सपोज किया और हमने प्रूव कर दिया b कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। सो r इज सिमेट्रिक। दिस इज हाउ वी कैन प्रूव सिमेट्रिक। नाउ थर्ड, ट्रांजिटिव। हाउ वी हैव टू प्रूव द ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में हमें दो पेयर लेने होते हैं, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी। सो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर मीन ए माइनस बी इज ए इंटीजर, तो हमने उसको एम सपोज कर दिया, ए माइनस बी इक्वल्स टू एम। और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर मीन बी माइनस सी इक्वल्स टू एन, वो भी इंटीजर है। तो एम इंटीजर है और एन इंटीजर है। ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों इंटीजर है क्योंकि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी। नाउ वी ऐड दिस टू, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू एम प्लस एन। एम इंटीजर एन इंटीजर, देन देयर सम इज आल्सो इंटीजर। बी से बी कैंसिल हो गया तो ए माइनस सी इक्वल्स टू आ गया एम प्लस एन। ए माइनस सी, ए और सी का डिफरेंस इंटीजर आ रहा है, एम प्लस एन इज इंटीजर, सो ए सी बिलोंग्स टू आर। सो हैंस आर इज ट्रांजिटिव। ए कोमा बी और बी कोमा सी हमने सपोज किए और हमने प्रूव कर दिया ए कोमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। जो ए कोमा सी है
वो भी आर से बिलोंग करता है, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज यू री वॉच द वीडियो। थैंक्स अगेन, हैव ए नाइस डे।